Welcome to Target MHT CET series, which is your road to VJTI COEP. And today I'm going to bring some more important previous year questions for you, which would clear your path for your good score or your perfect preparation towards MHT CET. Okay, I hope you guys are doing good with respect to your preparation. Today I've brought some questions which are from trigonometry. Alright, I'm going to take this as a mixed bag, जहाँ पे मैं थोड़े अलग अलग क्वेश्चन कवर करूँगा. अलग अलग क्वेश्चंस इन द सेंस वो क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल है. ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज़ करूँगा और थोड़ा सा ये भी यूज़ करूँगा, क्या बोलते हैं आपका, ट्रिग्नोमेट्री. ऑलराइट, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन वन पर्टिकुलर लेक्चर. लेट्स सी. Alright, so the question we have over here is general solution of x dy by dx is equals to y into x tan y by x is differential equation का क्वेश्चन है. ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पे y by x हमें दिख रहा है ये tan y by x. सो फर्स्ट थिंग जो आपको ऐसे क्वेश्चन में करनी है, we will substitute this y by x is equals to v. We will substitute this y by x is equals to v. So y is equals to vx. Now when we differentiate this, what do we get? dy by dx is equals to we get this as v plus x into dv by dx. What have we done over here? Now when we substitute all of this in our equation, right, जो हमारा मेन इक्वेशन क्या था, ये वाला था जो क्वेश्चन में दिया था. What do we get? We are gonna get, first I will rearrange this, so I can write it as dy by dx is equals to y by x minus tan y by x. करेक्ट, मैंने ये x को ये साइड लेके आया, ये वाला x तो कट हो गया और इस पर y by x आ गया. अभी मैं बस ये सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट एम आई गोना गेट? v प्लस x dv by dx is equals to v minus tan v. Alright, this is what I get. And x dv by dx is equals to, let's suppose if I bring this over here, your ये तो कट हो जाएगा, तो I am left with minus tan v. ठीक है, माइनस tan v. अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ये tan x ये साइड लेके आता हूँ, सॉरी tan v. ऑलराइट, व्हाट कैन आई राइट इट एज? आई कैन राइट इट एज माइनस cot v इंटू डी वी, और ये यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? dx बाई एक्स. मैं बस वो साइन यहाँ पे डाल देता हूँ, तो cot v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई एक्स. राइट, करेक्ट. हैवंट वी गॉटन व्हाट वी वांट? And hence we integrate both sides. What do we get? Log of sin v is equals to minus dx by x का integration would be minus log x, and don't forget a log c. Correct? A log c. ठीक है. Now if I bring this over here, it becomes log of sin x, sorry, sin v plus log of x, right, is equals to log c. And this, by logarithmic property we know this is nothing but sin v into x. This is equals to log c. ठीक है, और we can also write this as x sin v is equals to c, and v का वैल्यू क्या था? y by x. So what is my correct option? My correct option is option C. Let's have a look at this beautiful question on trigonometry that came. Theta is equals to 17 pi by 3 tan theta minus cot theta की वैल्यू पूछी थी इन्होंने. 2019 CET का क्वेश्चन है. ठीक है, so basically what is it asking for? It is asking for tan 17 pi by 3 माइनस कॉट 17 पाई बाई 3 बराबर. दिस इज वॉट इट इज आस्किंग यू फॉर. ठीक है, अगर आपको वो क्वाड्रेंट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन आता है तो यू विल डू दिस वेरी नाइसली. ठीक है, आई कैन राइट दिस टैन एज समथिंग एज 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3. करेक्ट, एंड सिमिलरली कॉट को भी वैसे लिखते हैं 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 बराबर. आई कैन राइट इट लाइक दिस, and we know that tan 5 pi or any multiple of pi plus 2 pi by 3 would give me a tan 2 pi by 3. Correct. Similarly, cot is going to be reduced to cot 2 pi by 3. And further I'll just change the ink over here for your understanding. I can write this tan as tan pi minus pi by 3. Correct. 2 pi by 3 को pi minus pi by 3 लिख सकते हैं. Correct. और cot को सिमिलरली पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं. गाइज ये आपको इंटरचेंजेबिलिटी आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू प्ले विथ एंगल्स. करेक्ट, और टैन पाई माइनस पाई बाई 3 इज नथिंग बट माइनस टैन पाई बाई 3. करेक्ट, करेक्ट. क्वाड्रेंट में आप चेक करोगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन टैन कॉस पॉजिटिव, राइट. सो टैन पाई माइनस पाई बाई 3
ये वाले क्वाड्रेंट में आता है जहाँ पे tan नेगेटिव, इसलिए -10π/3। सिमिलरली कॉट का क्या आएगा? सिमिलरली कॉट वुड बिकम माइनस कॉट ओनली, बट माइनस साइन ऑलरेडी है तो यहाँ पे इट वुड बिकम कॉट π/3। correct? We know the value of tan π/3 is √3, so this is minus √3 plus cot π/3 का 1/√3 है, so this is what we get. If we do the this thing, if we do the addition and everything, what we get is -3 plus 1 divided by √3, which is nothing but -2/√3, which is option D. Now here's a question, a standard question on differential equation. ठीक है, important है काफ़ी. General equation solution of a differential equation of or circle having a center at a -1, 2. Guys, अभी आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर -g, -f. राइट, हमने ये पढ़ा है. क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. ये होता है जनरल इक्वेशन. ठीक है, सिंस दिस इज द जनरल इक्वेशन, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? ये जो है यहाँ पे हम डाल देंगे -1, 2. ठीक है, सो वंस वी पुट दैट, व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी गेट? वी गेट x² + y² और -g है तो -1 का -1 इज +1, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2x. देखो g का वैल्यू यहाँ पे -1 है, उसको माइनस कर दिया तो प्लस हो गया. सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4y, बट साइन आएगा -4y + c = 0. देखो 2x -4y कहाँ पे है? 2x -4y ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस ओवर हियर. दैट इज योर आंसर. Now in this particular question we have value of x in you have to find out the value of x in 0, π/2. Satisfying this equation, sin x into cos x is 1/4. Alright, so basically sin x into cos x is 1/4. हमें एक फॉर्मूला पहले से सिखाया गया था, 2 sin x into cos x is equals to sin 2x. याद है? यह फॉर्मूला था. तो मैं इसको sin 2x लिख देता हूँ, और सिंस मैं क्या करता हूँ, यहाँ का 2 यहाँ पे लाया हूँ, ऐसा ये प्रिज्यूम करता हूँ, तो ये 1/2 आ जाएगा. राइट, यहाँ पे 4 है ना, तो ये मैं 2 यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे बस 2 बचा. सो व्हाट डू आई हैव? sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2. करेक्ट. सो 2x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ये x है, ये 1/2 है, बस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाता है, बराबर. 2x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, एंड दिस इज वी नो इज π/6. करेक्ट. सो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? π/12. x की वैल्यू आ जाती है π/12. एंड अगर 0, ये अपना जो x है ये 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, तो हमें पता है हमारी रेंज क्या आएगी? π/12 एंड π - π/12, π2 - π/2 - π/12, बराबर. सो योर वैल्यू विल बी ऑप्शन बी, दैट इज π/12 एंड 5 π/12. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी x की वैल्यू π/2 आई, तो π/12 इज वन वैल्यू and π/2 - π/12 is another value, which comes out to be 5/12. Option B is the correct choice. Let's have a look at the fifth question. In triangle ABC with usual notations, if cos A is equals to sin B upon sin C, then the triangle is. यहाँ पे आपको ट्राइंगल का टाइप पूछा हुआ है. करेक्ट. आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए, विच इज़ साइन ए रूल. राइट, साइन ए रूल क्या बोलता है? sin A upon A is equals to sin B upon B is equals to sin C upon C. Correct? छोटा c है ये. Right? This is a छोटा c. Also, we know that cos A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC. Right? These are all the formulas in your trigonometric chapter. करेक्ट. सो इफ़ आई कंपेयर ऑल ऑफ दिस, इफ़ आई कंपेयर, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? cos A इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन सी. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? B² + C² - A² अपॉन 2BC इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन सी है. राइट, तो इसको मैं B अपॉन C लिख सकता हूँ. करेक्ट, B अपॉन C लिख सकता हूँ, ये C कट हो गया. सो इन दी एंड व्हाट आई हैव इज B² + C² - A² इज इक्वल्स टू 2B². Alright, और C² - A² इज इक्वल्स टू B², क्योंकि ये B ये साइड आ गया, कट हो गया. सो C² इज इक्वल्स टू A² + B².
a square plus b square, correct? And what is this? This is nothing but a Pythagoras theorem, or it is a right angle triangle, which is option D. Guys, abhi you are in वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर एग्जाम, एडमिट कार्ड्स भी आ गए, सबको अपने स्लॉट पता चल गए, राइट? मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि टेस्ट कब लेना होता है सर, मॉक टेस्ट कब लेना होता है, मतलब टाइमिंग में क्यों, कौन सा दे या रैंडमली दे? नाउ सिंस यू हैव गॉटन एडमिट कार्ड, आई वुड सजेस्ट कि आपका जो भी स्लॉट आया है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, अकॉर्डिंगली आप आपका सेम टाइम में एग्ज़ाम दो. इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न ये कि आई वॉन्ट योर ब्रेन टू बी एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, and hence you'll get habituated. All right, so please make sure that you are giving your mock test in that particular time. And अभी जो आखिरी के कुछ दिन बाकी है उसमें एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दे के उसको पूरा एनालिसिस वही के वही दिन कंप्लीट करना इज़ वेरी नेसेसरी गाइस. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर गिविंग मॉक टेस्ट टू द फुलेस्ट ऑफ योर एनर्जी. ऑलराइट, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम स्कोर. प्रीवियस मॉक टेस्ट में लेट्स से अगर आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट में लेट्स से 90 मार्क्स आए हो, ऑलराइट, 90 आए हो, तो ये नेक्स्ट मॉक टेस्ट में एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ 95. एवरी मॉक टेस्ट देयर शुड बी एन इंक्रीमेंट, दैट इज़ आवर यूनिफाइड गोल. ठीक है, तब जाके CET में यू विल अचीव योर ऑप्टिमाइज स्कोर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक एनालिसिस करते वक्त एनालाइज करो कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन से चैप्टर में मिस्टेक हो रही है. ठीक है, divide your mistakes into two types. One is conceptual mistake and one is silly error. Alright, and one is calculation error. ये तीन टाइप में आपके एरर्स को या मिस्टेक्स को डिवाइड करो. ठीक है, ये तीन करने के बाद कंसेप्शनल जो भी आ रहा है वो कंसेप्ट फटाक से देख लो. सिली एरर नोट कर लो, मेक श्योर यू डोंट रिपीट दैट सिली एरर. और कैलकुलेशन तो यू हैव टू प्रैक्टिस थोड़ा सा. Alright, make sure that you are not making those same calculation mistakes in your CET exam. Guys, if you do this and if you keep on revising every chapter every day, आपके compressed notes बना लो. ठीक है, short compressed notes जिसमें हर चैप्टर में you will have something important points, notes, formulas written, summary points. Before exam you will just take this 2 hours before and you will revise this फटाफट. And before every mock also you will revise this फटाफट. My point being कि ठीक है, कंसेप्ट आए ना आए कोई चैप्टर का, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला तो हमको आना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा PYQs जो चैप्टर बाकी है उसके कर लो. ठीक है, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि अभी कोई नए चैप्टर को हाथ में लगाओ, अग्रीड, बट एटलीस्ट उसके बेसिक फार्मूला, समरी और PYQs तो हम लोग देख ही सकते हैं. आई एम गोइंग टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and please keep sharing our channel. Thanks a lot.